میاچی لائن کی تعمیرات پر درخت کاٹنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے میئر کراچی اور سیکریٹری ٹرانسپورٹ کو طلب کر لیا۔ عدالت نے درخواست کی سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ جی ہاں، میاچی لائن کی تعمیرات پر درخت کاٹنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے ممتاز جمالی سے۔ ممتاز، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل دیکھیں جی، آج جسٹس ملازم پاور کے سربراہی میں دو کی بینچ نے کراچی میں بی آر ٹی لائن کے منصوبے پر درخت کاٹنے اور درخت نہ لگانے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جہاں پر سیکریٹری کنڈلات جو ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست دار کے وکیل شاہنواز طاہری بھی عدالت میں پیش ہوئے، لہٰذا عدالت میں آئندہ سماعت پر میئر کراچی اور ساتھ ہی ساتھ سیکریٹری ٹرانسپورٹ کو جو ہے کافی ایسے میں طلب کر لیے اور درخواست جو مزید سماعت ہے اب وہ 22 اکتوبر تک ملتوی کرتی ہے۔ درخواست دار کے وکیل کا موقف تھا کہ جو معاہدہ طے پایا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو ٹھیکیدار ہے وہ ایک درخت کاٹنے کے بدلے میں 5 نئے درخت لگائیں گے، لیکن تاحال کوئی جو ہے نیا درخت نہیں لگایا گیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ درخت کاٹنے کی وجہ سے شہر جو ہے وہ کھنڈرات بنتا جا رہا ہے، جبکہ گرین سٹی کا جو فاصلہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین سے بھی جواب طلب کر لیا۔ جی بہت شکریہ ممتاز جمالی۔ محکمہ ثقافت و سیاحت کا ایک اور اہم قدم، سیاحتی مقامات پر فلم، ڈرامے، کمرشل ویڈیو، فوٹوگرافی، برائیڈل شوٹنگ کی سرکاری فیس میں بڑی کمی کر دی۔ سیکریٹری کلچر کی جانب سے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ آج جمالی سے بات کریں گے، بتائیے گا کتنی کمی کی گئی ہے؟ آج سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ محکمہ ثقافت و سیاحت کا ایک اور اہم اقدام، سیاحتی مقامات پر فلم، ڈرامے، کمرشل ویڈیو، فوٹوگرافی، برائیڈل شوٹنگ کی سرکاری فیس میں بڑی کمی کر دی گئی ہے۔ سیکریٹری کلچر کی جانب سے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ثقافت و سیاحت کا ایک اور اہم قدم، سیاحتی مقامات پر فلم، ڈرامے، کمرشل ویڈیوز، فوٹوگرافی، برائیڈل شوٹنگ کی سرکاری فیس میں بڑی کمی کر دی گئی ہے۔ عاجز جمالی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عاجز، بتائیے گا بڑی کمی کی گئی ہے سرکاری فیس میں؟ ذوالفقار علی شاہ کی ہدایت پر جو سندھ کے بڑے سیاحتی مراکز ہیں ان کی فیس میں کمی کر دی گئی ہے۔ ان کے فلم شوٹنگ پہ، ڈرامے کی شوٹنگ پہ یا کمرشل ویڈیو یا فوٹوگرافی یا برائیڈل شوٹنگ پہ انہوں نے فیسز جو تھی ان کو کم کیا ہے۔ بتایا ہے کہ موہنجو دڑو اور مکلی کی جو 2 لاکھ روپے فیس تھی وہ اب کم کر کے 50,000 روپے کر دی گئی ہے۔ قائد اعظم میوزیم کی جو 1 لاکھ روپے فیس تھی وہ اب کم کر کے 30,000 روپے کر دی گئی ہے۔ مکی ہاؤس میوزیم حیدرآباد، کوٹ ڈی جی کا قلعہ، نو کوٹ کا قلعہ، رنی کوٹ کا قلعہ، ان تمام کی فیس بھی جو تھی وہ 1 لاکھ روپے تھی، 1 لاکھ سے کم کر کے 30,000 روپے کر دی گئی ہے۔ عمر کوٹ قلعہ میوزیم، رنی کوٹ کا قلعہ، چوکنڈی کا قبرستان، بمبور کا قلعہ، یہ جو تاریخی مقامات تھے ان کی فیس پہ 1 لاکھ روپے سے کم کر کے 30,000 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ سیکریٹری ثقافت کی جانب سے اس کا آج یہاں پر باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں پرانی فیسیں ختم کر کے نئی فیسز جو ہے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد لاگو ہو گئی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں آج تھیٹر پلے کراچی کا بچھو پیش کیا جائے گا۔ کراچی کا بچھو ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے۔ اس کی کہانی 2 پڑوسی خاندانوں اور ان کے 2 نوکروں کے گرد گھومتی ہے۔ مزید ہم جانیں گے نمائندہ اقصیٰ شاہد سے۔ اقصیٰ، آگاہ کیجیے گا۔ 35 روز پر مشتمل ورلڈ کلچر فیسٹیول کراچی آرٹس کونسل میں جہاں مختلف جو وہ تھیٹر پیش کیے جا رہے ہیں، 40 سے زائد ممالک جو وہ یہاں پر شرکت کر رہے ہیں، اپنی مذہب، اپنی تہذیب کے مطابق جو وہ یہاں پر کلچر فیسٹیول میں جو وہ مختلف ممالک کے مہمان جو یہاں پر آ کے اپنے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز یہاں پر دکھا رہے ہیں، اپنے فن کا جو وہ مظاہرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ 5واں روز آج جو وہ اس فیسٹیول کا ہے، جس میں آج 5واں تھیٹر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا کراچی کے بچھو کے نام سے، جس کے جو مصنف ہیں وہ خالد احمد صاحب ہیں۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو آب و تاب سے یہ اپنا کلچر فیسٹیول جو ہے وہ یہاں پر جاری، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر بھر کے جو باسی ہیں وہ یہاں پر آ کے جو وہ رات کے اوقات میں شرکت کرتے ہیں۔ دن سے جو ہے وہ یہاں پر تیاریاں شروع کی جاتی ہیں۔ آج 5واں روز جو ہے وہ اس فیسٹیول کا ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 5واں تھیٹر ہی یہاں پر پیش کیا جائے گا۔ جو گزشتہ روز جو ہے وہ جتنے بھی تھیٹر ہم نے دیکھے کہ گزرے، وائٹ ریبٹ، ریڈ ریبٹ، 5th جنریشن، ویٹنگ فار ٹرین، کافی مقبول رہے۔ شرکا جو ہے وہ بڑے شوق سے جو ہے وہ دیکھ کے
ऑडिटोरियम से जो है वो खुशी से जो है वो बाहर निकले। आज का जो थिएटर है कराची का बिच्छू, ये आज का जो है वो स्पेशल इवेंट है और आज एक ही ये थिएटर जो है वो पेश किया जाएगा, जिसके लिए जो है वो टिकट जो है वो खरीदे जा चुके हैं। आने के वक्त जो है यहाँ पर लाइन लग जाएगी हम देखने के। आज का जो ये कराची का बिच्छू थिएटर है, बेसिकली ये मुख्तलिफ ज़बानों में जो है वो पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ किरदार इसमें काफ़ी सारे मौजूद हैं और जो इसका एजेंडा है वो है फ़नी, यानी हमारी आवाम के लिए जो है कॉमेडियन आज का थिएटर जो है वो होने वाला है, जिसमें मैसेज भी यकीनी तौर पे जो वो लाजमी दिया जाएगा। हम हर थिएटर में ही देखते हैं कोई ना कोई जो वो मैसेज आवाम तक जो वो कन्वे किया जा रहा होता है, तो लिहाजा जो शुरका हैं वो यहाँ पर आते हैं। आर्ट्स कौंसिल में जो है वो मुख्तलिफ ममालिक जो है वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, जो एक पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। जी, चेयरमैन निसार खोड़ो की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जारी है। सेक्रेटरी औकाफ की अदम मौजूदगी पर चेयरमैन PAC ने बरहमी का इजहार भी किया है। तफसीलात जान लेते हैं आज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सिंध असेंबली की कमेटी रूम में आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था महकमा औकाफ के बारे में, लेकिन सेक्रेटरी औकाफ की गैर मौजूदगी की वजह से ये इजलास मुलतवी हो गया है। चेयरमैन PAC निसार अहमद खोड़ो ने सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी में पर जो है बरहमी का भी इजहार किया है और कहा है कि ये पहले से 1 माह कबल से ये शेड्यूल्ड इजलास था, तयशुदा इजलास था, उसके बावजूद सेक्रेटरी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। महकमा औकाफ के हवाले से गुज़िश्ता इजलास में बताया गया था कि हज़ारों एकड़ ज़मीन है जो वो मुख्तलिफ लोगों को अलाट की गई है, तो आज के इजलास में उस अलाटमेंट की तफसीलात पेश करनी थी, वहाँ से क्या आमदनी हो रही है उसकी तफसीलात पेश करनी थी, लेकिन इजलास नहीं हो सका है। यहाँ पे सिंध असेंबली की कमेटी रूम में एक और इजलास हुआ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। इस हवाले से जो चेयरमैन PAC हैं निसार अहमद खोड़ो, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है मीडिया को। उन्होंने बताया है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसका एक सर्वे किया गया है। बताया है इनको ब्रीफिंग में कि 95 लाख घरों का सर्वे हो चुका है और इस वक्त 25 लाख से ज़ायद घरों को मदद की जा रही है। माहाना जो है इनको 10 से 11 हज़ार रुपये अदा किए जा रहे हैं। निसार अहमद खोड़ो का ये कहना था कि उन्होंने हिदायत की है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ख़वातीन जो पैसे जमा करने के लिए जाती हैं, जो प्राइवेट सेंटर्स पे जो रश होता है, धक्कम पेल होता है, लाठी चार्ज होती है, इस सिलसिले को रोका जाए और इस मेकेनिज़म को बेहतर किया जाए कि लोगों को अपने घरों तक, ख़ास तौर पे जो गरीब ख़वातीन हैं उनको अपने घरों तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे पहुंच सकें। तो ये एक ब्रीफिंग थी इस हवाले से और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से उन्होंने यही बताया कि इजलास मुलतवी हो गया है और अब दोबारा ये इजलास बुलाया जाएगा। जी, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल ने नर्सिंग और पैरामेडिकल काउंसिल को ज़म करने की मुखालफत कर दी। नायब सदर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल इस्माइल जस्कानी का कहना है कि हमारी और नर्सिस की अलग अलग पहचान है, हुकूमत फैसला वापस ले। मज़ीद हम तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कौंसिल को ज़म करने के खिलाफ नर्सों ने तो कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जबकि इसके अलावा अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कौंसिल के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्माइल जस्कानी, उन्होंने भी इस पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और इनका कहना है कि इनकी भी अपनी कौंसिल है, ये जो सिंध से भी ये मेंबर हैं इलेक्ट, और इनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। इस्माइल जस्कानी, क्या बताएंगे आप इस हवाले से कि आपकी कौंसिल और उसकी कौंसिल में फ़र्क किया और ज़म करने के खिलाफ आप क्या बात करेंगे? बेसिकली देखें, 2022 में पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का एक बिल मंजूर होता है, उसके बाद 2023 में हमारी काउंसिल बनती है, जिसमें हमारे पास 30 डिसिप्लिन है जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं और 25 प्रोग्राम जो हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं और 20 जो है हमारे FSC प्रोग्राम है। हम इनको रेगुलेट करते हैं, पूरे मुल्क भर की इंस्टीट्यूशंस की रजिस्ट्रेशन करते हैं, रिकग्नाइजेशन करते हैं और उसके अलावा हम उनके रेगुलेटरी बॉडी, उनके स्टैंडर्ड बनाते हैं ताकि मुल्की लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उनको रेगुलेट किया जा सके। सेम फंक्शन हमारे नर्सिंग काउंसिल का भी है, सेम फंक्शन PMDC का भी है, सेम फंक्शन दूसरी काउंसिल्स का भी है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हुकूमत ने एक अचानक एक फ़ैसला किया, हम उसको मुस्तरद करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर एक रेगुलेटरी बॉडी जो आज़ाद है, ख़ुद मुख्तियार है, हमारा अपना स्टेटस है, हमारी अपनी डिग्निटी है, तो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल को भी सेपरेट रखा जाए और नर्सिंग काउंसिल को भी सेपरेट रखा जाए।
अच्छा, इसमें नुकसान नर्सेज का क्या है, पैरामेडिकल का क्या है, और दोनों के अलग अलग बिल्कुल कौंसल्स हैं? जी, ये दोनों की रेगुलेटरी बॉडी अलग हैं, दोनों के फंक्शंस अलग हैं, दोनों का फंक्शंस अलग हैं। इंटरनेशनल लेवल पे काउंसिल भी अलग हैं, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स काउंसिल्स अलग हैं, अलाइड नर्सिंग जो इंटरनेशनल नर्सिंग भी काउंसिल अलग है। तो इसलिए हमारे डोमेन भी अलग है, हमारा काम भी अलग है, हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है, टोटल इंडिपेंडेंट है। दोनों की इंडिपेंडेंसी पे असर पड़ेगा, जिससे हमारी स्टैंडर्ड्स पे जो है वो ख़राब होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे इस्माइल जिस्कानी जो कि मेंबर भी हैं सिंध से, जबकि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जिनका कहना है कि जिस तरह नर्सेज अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रही हैं, इसी तरह ये पैरामेडिकल की जो कौंसल है वो भी इस पर एहतजाज कर रही है और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करती है कि हमें भी एक अलग पहचान दी जाए। जिस तरह पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल की पहचान है, तो दोनों अलग अलग कौंसल हैं, तो इनको ज़म ना किया जाए ताकि वो बेहतर अंदाज में मुल्क भर में खिदमात सर अंजाम दे सकें। जी, अनासी मौसम सरमा के आगाज़ से कबल ही अंडे महंगे हो गए। एक माह के दौरान फ़ी दर्जन अंडों की कीमत में 60 रुपये तक का इजाफा। होलसेल फ़ी दर्जन अंडे 310 रुपये तक पहुँच चुके। रिटेल में फ़ी दर्जन अंडे 320 रुपये तक फ़रोख्त किए जाने लगे। तफसीलात ले लेते हैं वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। अंडों का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियादों पर किया जाता है, बिलखुसूस नाश्ते में जो है अंडा जो है वो लाजमी जुज़ है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सर्दियों के आगाज़ से कबल ही जो है वो अंडों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और अंडे जो है तकरीबन 300 रुपये दर्जन से भी तजावुज़ कर गए हैं। होलसेल की बात करें तो होलसेल में जो फ़ी दर्जन अंडे हैं वो तकरीबन 308 रुपये, कहीं पे 310 रुपये तक पे दस्तियाब है फ़ी दर्जन। इसी के साथ साथ अगर बात करें रिटेल में, तो रिटेल में 310 रुपये और कहीं पे इससे ज़ायद पे अंडे जो हैं वो दस्तियाब है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये अंडे अचानक से जो महंगे हुए हैं और 300 रुपये की फिगर क्रॉस कर गए हैं, इसकी क्या वजह है? और एक हफ्ते में होलसेल में फ़ी दर्जन अंडे कितने महंगे हुए हैं और रिटेल में कितना इजाफा हुआ है फ़ी दर्जन अंडे? देखिए, ये 10-10 रुपये 20-20 रुपये करके बढ़ाते हैं ये तो फार्म वाले के हाथ में रेट है। अभी तो मतलब सर्दियाँ आ रही हैं तो रेट ये 400, 450, 500 तक लेके जाएंगे, 300 रुपये में थोड़े तक छोड़ेंगे, क्योंकि रेट तो फार्म वाले के हाथ में। वो ब्लैक भी माल बेचते हैं, मतलब जैसे 9120 का रेट है तो वो 9500 में भी बेचते हैं, वो ब्लैक भी माल बेचते हैं। ये बात नहीं है कि मतलब वो सस्ता भी देते हैं माल, इस वजह सर्दी से माल महंगा। अच्छा, होलसेल में फ़ी दर्जन अंडे कितने महंगे हुए हैं? यानी कि पहले 250 थे, अभी आस्ते आस्ते बढ़े हैं, 10-10 रुपये 20-20 रुपये करके बढ़े। अभी 310 का रेट हो गया। पिछले दिनों ये 260 रुपये थे, अभी 40 रुपये 50 रुपये में इजाफा हुआ। आज बिल्कुल ये है दुकानदार जिनका कहना है कि जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनकी जानिब से ये अंडों की कीमतों के हवाले से नाजायज़ मुनाफाखोरी सामने आती है। उनकी जानिब से ये अंडे जो है वो महंगे किए जाते हैं और सर्दियों से पहले ही अंडों की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से दुकानदार भी परेशान है क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उतना ही रहता है। ताहम जो अंडों की ख़रीदारी पोल्ट्री फार्मर से उसकी मद में पैसे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है और इस वजह से शहरियों को भी जो है वो महंगे अंडे जो है वो दस्तयाब होते हैं। और इस हवाले से जो ज़िले इंतज़ामिया है उनकी जानिब से जो पोल्ट्री फार्मर हैं जो मुनाफाखोरी करते हैं उनके खिलाफ जो है वो उस तरीके से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। इस वजह से हम देख रहे हैं कि मौसम सरमा से कबल ही जो है वो अंडों की कीमतों में इजाफा हुआ है और दुकानदारों ने अंडों की कीमतों में मजीद इजाफे की पेशगोई की है। जी, सिंध हाई कोर्ट में औरंगी टाउन में जर्मन स्कूल की ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को स्कूल की ज़मीन का कब्जा ख़त्म कराने का हुक्म दे दिया। मुमताज़ जमाली से तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा। आज सिंध हाई कोर्ट में औरंगी टाउन में जर्मन स्कूल के प्लॉट पर कब्जे के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को जर्मन स्कूल की ज़मीन का कब्जा ख़त्म कराने का हुक्म दे दिया है। साथ ही साथ अदालत ने ये भी हिदायत की है कि जगह खाली करवाने के बाद इस जगह पर यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो बनाया जाए। अदालत ने ये भी आज हुक्म दिया है कि इराज़ी की तैलीमी मकासद के लिए इस्तेमाल के लिए स्कूल कमेटी और माहिर तैलीम से जो है मशावरत की जाए और कमेटी जो है 3 माह में इस मुतल्लिक रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराए। अदालत दरख्वास्तदार का ये कहना था कि जर्मन स्कूल का जो प्लॉट है वो काफ़ी अरसे से कब्जा माफिया के कब्जे में है, लिहाजा उनका ये भी मौक़िफ़ है कि जर्मन स्कूल का जो कि 1 लाख से ज़ायद 1000 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल ये प्लॉट था जिस पर मुबैना तौर पर कब्जा हुआ था और कब्जे के खिलाफ ये दरख्वास्त पर अदालत ने हुक्म दिया है और अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को फौरी तौर पर कब्जा ख़त्म कराने का हुक्म दे दिया है। और शहर में LPG की दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसकी वजह से कीमत भी बढ़ गई है।
मुख्तलिफ इलाकों में फ़ी किलोग्राम कीमत 300 रुपये तक पहुँच गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, देखें शहर में एलपीजी माफिया का राज है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर मुख्तलिफ दामों एलपीजी की फरोख्त की जा रही है। कहीं 260 और कहीं 300 रुपए किलो पर भी एलपीजी मिल रही है। इसकी क्या वजूहत है देख रहे हैं। शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इंतजामिया ने कार्रवाइयाँ भी की हैं। एलपीजी की जो दुकानें वो बंद भी करवाई हैं। इनसे जानते हैं, बताइएगा 300 रुपए किलो तक भी एलपीजी मिल रही है, इसकी क्या वजह है? ये दुकान बंद हो गई ना, उसकी वजह से ये दे रहे होंगे, बाकी रेट जो है इतना नहीं बढ़ा हुआ। 50-60 तो हर बंदा चला रहा है, 60-70 भी नहीं चला रहा कोई। ये लगे कैसे चला रहे हैं? पुलिस वाले काम कर रहे हैं। नहीं, तंग का मुझे पता नहीं कि मैं बोलूँ पुलिस वाले। ये केएमसी वाले आ सकते हैं, पुलिस वाले भी आ सकते हैं। बंद है, इन दो में से किसी ने करवाया है। अभी तक हमारे पास नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, आगे भी नहीं आएंगे। बंद हो गए ज़रूर आदमी वो बता देंगे, या कोई तो किसी चीज़ में उन्होंने खुलवाया है तो वो आगे कमाएंगे ना। बिल्कुल, देखें जैसे दुकानदार भी कह रहे हैं कि दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई है, तो इस सिलसिले में जो पुलिस की सरपरस्ती में शहर के बाद ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर दुकानें खुली हैं, तो फिर वहाँ पर एलपीजी 300 रुपये किलो तक भी जो है वो फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से जो दुकानदार हैं उनके अपने कंसर्न्स भी हैं, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एलपीजी है वो 260 रुपये से लेकर 300 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है।